Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 5 of Software Design and Architecture. Today we will discuss part B of our UML. So students, today we will start our lecture discussion. I would like to give you a little bit recap about our last lecture. So students, what we studied in our last lecture, we see the importance of UML, what is the UML and for which purpose it is being used. We also see the different goals of UMLs. We see the history of UML from where it comes and why we need a common or standard framework for the modeling purposes. And then we see the different versions of UML already available from its origin to till latest version. So after it we see the different as perspectives of UML, structural one and the behavioral one. In structural perspective we see the static one, and the behavioral structure we see the dynamic functionalities. So after it we discuss the static and dynamic perspectives as well, and then we see the classification of UML diagrams. We briefly discuss the different type of diagrams about UML, in which we see the structural diagram and the behavioral diagrams in detail. So after it we see the how the UML maps from analysis to design, and we see the importance of UML in the analysis and design phase. So it's a little bit recap about our last lecture. So let's start our today's lecture discussion. So today we will discuss the different today we will describes the different building blocks in this chapter. So in this building blocks we will discuss three things. First one is things, second is relationship, and the last one is diagrams. So let's formally discuss these things in our today's discussion. So first one is things. तो थिंग्स क्या है? थिंग्स जो है मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यूएमएल के, जिसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं फोर बेसिक एलिमेंट्स में: स्ट्रक्चरल वन, बिहेवियरल वन, ग्रुपिंग एंड एनोटेशनल. सो let's discuss these four things one by one. So the first one is class. So in structural things, first one is class. So all of you are well aware about the class, as you already studied the object oriented programming. So actually class represents the set of objects having similar responsibilities. तो क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, लॉन्ग्वेज टूल हॉरिजॉन्टल लाइंस. द अपर पार्ट इज नोन एज द क्लास नेम, and the second one is known as attributes, it is also called a data member part, and the third one is operations, which we also called a data method. तो क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है. मोस्ट टॉप पे क्लास का नेम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सेकंड पे एट्रीब्यूट्स लिखे जाते हैं जिनको हम डाटा मेंबर्स भी कहते हैं, और लास्ट पे हम फंक्शंस लिखते हैं या जिनको ऑपरेशंस भी कहते हैं या डाटा मेथड्स भी कहते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज़ इंटरफेस. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द इंटरफेस? So basically interface is a set of operations which specify the specific responsibility of a class. तो इंटरफेस क्या है? डिफाइन करता है उन ऑपरेशंस को जो किसी क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्पेसिफाई करता है. तो इसको एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन से और अपर पार्ट में इंटरफेस मॉड्यूल्स के नेम से इसको रिप्रेजेंट किया गया है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज नोड, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल यू कैन सी हेयर. बेसिकली a node can be defined as a physical element that exists at run time. तो नोट हमारे पास क्या है? एक फिजिकल एलिमेंट है जो एग्जिस्ट करता है रन टाइम के ऊपर. सो वट वी आर डिस्कसिंग हियर, वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंट स्ट्रक्चरल थिंग्स. फर्स्ट वन वाज द क्लास, सेकंड वन वाज द इंटरफेस, एंड द थर्ड वन वाज नोड, एंड द next one is collaboration. So now what is a collaboration? The role of collaboration is to define the interaction between elements. जो collaboration है different elements के दरमियान interaction को define करती है, और इसको represent, इसकी representation आप ग्राफिकली देख सकते हैं, इसको इस symbol से represent किया जाता है. And the next one is use case. Use case is what? Use case gives us the external view of the system which we utilizes to represent our system in functional perspective. यूज़ केस को हम अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को ग्राफिकली प्रोटोटाइपिंग शेप में प्रेजेंट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, विच और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इट रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ एक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ सिस्टम फॉर अ स्पेशल गोल. तो वी कैन रिप्रेजेंट द यूज़ केस मॉडल in the oval symbol here, you can see that. And the next one is component. So what is a component? Components
डिस्क्राइब द फिजिकल पार्ट ऑफ अ सिस्टम। कंपोनेंट जो है सिस्टम के फिजिकल पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं, और इसकी ग्राफिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यू कैन इन दिस शेप ऑफ सिंबॉलिक यू कैन सी हेयर. Now these were the specific things which we discussed. So what we are discussing the things building blocks in which we see the structural. In the further structural things we discuss the basic six things: class, interface, node, collaboration, use case, and component. And we see the symbols of all of these six structural things. Now we are moving towards the behavioral things. So now what are the behavioral things? Behavioral things हमारे पास क्या हैं and why we use it? बेसिकली जो बिहेवियरल थिंग्स हैं ये कंसिस्ट कर रही होती हैं, ये सिस्टम का डायनामिक पार्ट को शो करती हैं यूएमएल मॉडल के अंदर. एज वी वेरी ब्रीफली डिस्कस द स्ट्रक्चरल एज वेल एज द बिहेवियरल aspects of the UML model. As you know, structural things represent the static view of the system, and the behavioral represents the dynamic view of the system. So in the behavioral things, first one is interaction. इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंटरेक्शन क्या है. सो इंट्रैक्शन को हम डिफाइन करते हैं एज अ बिहेवियर. एक बिहेवियर होता है जो कंसिस्ट कर रहा होता है डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर जो मैसेज को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स. डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान ग्रुप ऑफ मैसेज होता है जिसका एक्सचेंज हम कर रहे होते हैं किसी कॉमन टास्क को अचीव करने के लिए, और इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से अलॉन्ग विद दी सिंबल इसके ऊपर हमें अपना मैसेज होता है जिसको हम डिफरेंट एलिमेंट्स के बिटवीन हम इसको डिफरेंट एलिमेंट्स के बिटवीन ये मैसेज को हम एक्सचेंज करते हैं किसी भी टास्क को फुलफिल करने के लिए. इसकी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं इंटरेक्शन की. एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज़ स्टेट मशीन. सो व्हाट इज़ द स्टेट मशीन? स्टेट मशीन हमारे पास क्या है? तो ये बेसिकली हमारे पास यूज़फुल कब होती है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है लाइफ साइकिल में वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो के करंटली स्टेट के ऊपर करंटली हमारे ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है. बेसिकली ये हमारे पास डिफाइन कर रही होती है सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स क्या है, पहले कौन सी स्टेट आई देन कौन सी स्टेट आई, किसकी स्टेट को हमारे पास हर सिस्टम की डिफरेंट स्टेट्स को बता रही होती है कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो किसी एक्सटर्नल इनपुट्स के अगेंस्ट या इवेंट्स के अगेंस्ट कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव कर रहा है. सो बेसिकली जो इनपुट्स हैं इवेंट्स हैं हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्टेट चेंज हो रही होती है. सो स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये राउंडेड रेक्टेंगल यूटिलाइज करते हैं, और इसके अंदर हमने गिवन स्टेट को मेंशन करते हैं कि इस टाइम जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस टाइम पे हमारे सिस्टम की स्टेट क्या है. और ये सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट्स का गिवन होता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स किसी इनपुट्स के अगेंस्ट या इवेंट्स के अगेंस्ट किस सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करेंगे. और ये जो इवेंट्स हैं या इनपुट्स हैं या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है अपनी स्टेट को चेंज कर रहा होता है. So here we see the three behavioral things, two behavioral things: interaction and the state machine. Now we are moving towards the third things, which is the grouping things. So what is the grouping? As its name showing off, it is basically defined as the mechanism to group elements. हम अपने different elements को ऐसा mechanism जिसके अंदर हम अपने different elements को एक group की form में शक्ल दे देते हैं, उसको हम कहते हैं grouping. तो बेसिकली दिस इज़ द ओनली वन ग्रुपिंग थिंग अवेलेबल. हमारे पास थिंग्स में सिर्फ ए वन ही ग्रुपिंग थिंग अवेलेबल है विच वी कॉल्ड अ पैकेज. सो व्हाट इज़ द पैकेज? पैकेज इज़ यू कैन से दैट गैदर इट कंबाइंस स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल थिंग्स. सो जो हमारे पास पैकेज है जस्ट ये हमारे पास एक ही ग्रुपिंग थिंग है जो हम जिसकी मदद से हम स्ट्रक्चरल को और बिहेवियल थिंग्स को गैदर करते हैं. सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगल एंड द अपर वन पार्ट इज़ आल्सो द लिटिल बिट रेक्टेंगल, and we place the package name inside the rectangles. You can also look into the diagram. And now the next thing is annotational things. So what is the annotational things? क्या है हमारे पास? तो एनोटेशनल थिंग्स होते हैं कि हम अपने रिमार्क्स को, अपने कमेंट्स को, डिस्क्रिप्शंस को यूएमएल मॉडल के एलिमेंट्स के अंदर कैसे लिख सकते हैं. तो वी हैव ओनली वन एनोटेशनल थिंग विच वी कॉल्ड अ नोट. तो नोट क्या है? नोट हमारे पास
हम यूज़ करते हैं अपने कमेंट्स लिखने के लिए, अपने कंस्ट्रेंट्स को किसके अंदर, यूएमएल के एलिमेंट में। तो you can see the graphical representation of node. So basically the work of node is to render different comments and constraints of a UML element. There is only one annotational thing which we called a node. And now we are moving toward the second building block which we called a relationship. So till here we discuss the things. In the heading of things we see four different types of things: structural things, behavioral things, grouping, and annotational. In structural thing we see the class, interface, node, collaboration, use case, and component. While in behavioral things we just see the two types of behavioral things. First one was the interaction and the second was state machine. After it we see the grouping things. In the grouping things we just see over the package, what is the package, and we also see its graphical or symbolic representation. And the last thing was the annotational thing. We see the what is node and how it is being used in the elements of UML. So now our next part is relationship. तो अब relationship क्या है? रिलेशनशिप एक और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है यूएमएल का, जो शो करता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ आपस में कैसे एसोसिएटेड हैं, और ये जो एसोसिएशन है वो किसी भी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को डिस्क्राइब कर रही होती है. सो बेसिकली देयर आर फोर काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप अवेलेबल. तो करंटली हमारे पास फोर टाइप्स की रिलेशनशिप अवेलेबल. द फर्स्ट वन इज़ डिपेंडेंसी. सो सिंपली डिपेंडेंसी शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स. जो डिपेंडेंसी है दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप बता रही होती है, जिसके अंदर अगर एक एलिमेंट चेंज हो रहा हो तो वो दूसरे एलिमेंट को भी अफेक्ट करती है. सो यू कैन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डैश लाइंस विद द एरो ऑन द लास्ट. You can see the dependency graphical representation or a symbolic representation. So dependency is a relationship between two things in which changes one element can also affect the other element of the system. So it's the concept of dependency. So the next one is association. जो association है हमारे पास ये set of links हैं जो different elements को connect करते हैं UML के अंदर. तो ये भी हमें बता रहे होते हैं कि कितने ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो जो एसोसिएशन है ये हमें ये भी बता रहे होते हैं कि कितने ऑब्जेक्ट्स जो हैं एक हमारे रिलेशनशिप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू represented by two arrows on both ends with the dashed lines shows the association. So basically you can say that it's a set of links which connects different elements together in a UML model. It also tells us how many objects are being taking part in that relationship. So it's called a concept of association. And now the next one is generalization. So what is generalization? बेसिकली जनरलाइजेशन कैन बी डिफाइंड. जनरलाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, एक रिलेशनशिप है विच कनेक्ट्स अ स्पेशलाइज्ड elements in which with a generalized element. So what does it mean? It basically describe inheritance concept relationship in the world of objects. ये जनरलाइजेशन जो है या स्पेशलाइजेशन है ये हमारे पास इनहेरिटेंस का भी कंसेप्ट हमें बता रहा होता है. सो जनरलाइजेशन है क्या? जनरलाइजेशन हमारे पास एक मैकेनिज़्म है जो हमारे पास जिसके अंदर हम सिमिलर क्लासेस को कंबाइन कर रहे होते हैं किसी ऑब्जेक्ट की इनटू अ सिंगल वन. Like we can say that generalization is a mechanism for combining similar class of objects into a single more general class. So जो हमारे पास जनरलाइजेशन है इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉमनैलिटीज़ की किसी भी एंटिटी की कॉमनैलिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं. और जो कॉमनैलिटी हैं इसकी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर्स, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं अ सुपर क्लास has the most general attributes, operations, and relationships that may be shared with with its subclass. So we can see the graphic. We can see the this diagram what the generalization actually look likes. So here you can see that we have a van and limousine. There is two objects we have. So two objects or two classes we have. So you can see that both van and limousine are a type of car. So here what we are doing, we are generalize we are provide generalization of van and limousine which both extends the class of car. So it's a concept of generalization. So the next one is realization.
सो व्हाट इज़ रियलाइजेशन क्या है? तो रियलाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं एज अ रिलेशनशिप जिसके अंदर हमारे पास दो एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। जो हमारे पास एक एलिमेंट्स होता है वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें बता रहा होता है जिसको भी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया होता, और अदर कोई ऐसा एलिमेंट होता है हमारे पास जिसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया होता है। इस रिलेशनशिप को ये रिलेशनशिप यूजुअली एग्जिस्ट करते हैं इंटरफेस बिल्डिंग्स के अंदर। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइंस विद द filled arrow, which shows the concept of realization. So till here we see the second building block of UML relationship, in which we see the dependency, association, realization and generalization. Now we are moving towards the third building block of UML, which are the diagram. So as we see in the previous lecture कि यूएमएल की जो क्लासिफिकेशन के डिफरेंट डायग्राम्स हैं स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव में और बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में, डिफरेंट डायग्राम्स को हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट व्यू में कि ये डायग्राम्स क्या हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं। सो एक्चुअली अब हम जा रहे हैं इन डिफरेंट डायग्राम्स की डिटेल्स में कि कौन से डायग्राम में कौन कौन से एलिमेंट्स थिंग्स हम यूटिलाइज करते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सी थिंग्स और विच काइंड ऑफ रिलेशनशिप दिस डायग्राम्स हैव, एंड अदर डिटेल्स आर बीइंग डिस्कस इन दी later slides. So let's move this slide is already discussed in many times in the previous lecture as well. We will discuss this slide in the later slide as well. So let's start the diagrams perspective of building blocks. So the first one is class diagram. So students, what is the class diagram? Basically class diagrams are widely used. जो क्लास डायग्राम्स हैं हम वाइडली इसको यूज़ कर रहे होते हैं किसके लिए? डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सिस्टम में डिफाइन करने के लिए और उनका रिलेशनशिप को बताने के लिए। जो क्लास डायग्राम है ये हमारे पास क्लासेस, इंटरफेसेस, एसोसिएशन एंड कोलैबोरेशन से मिलकर ही बिल्ड की जाती है। और एक क्लास के अंदर मोस्टली जो बेसिक उसके एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ द एट्रीब्यूट, जिसको फर्स्ट वन इज़ द क्लास नेम, जिसके अंदर हम क्लास का नेम बताते हैं कि इस क्लास का एक्चुअली नेम क्या है। एंड द सेकंड वन इज़ एट्रीब्यूट विच वी आल्सो कॉल द डाटा मेंबर। एंड द थर्ड पार्ट इज़ द ऑपरेशन पार्ट और विच वी आल्सो कॉल द डाटा मेथड, या जिसको हम फंक्शन भी बोलते हैं। यू कैन आल्सो सी द diagram also see the graphical representation of class diagram. The first section is class name, which is shown as the customer, and the second section is attributes, which we call the name and address, and the third part, which is we call the data member or operations like credit rating represent the function. So here is the a little bit little bit information about the class diagram. Now here you can see another example of class. So here you can see that in the upper section we have class name, account name, and in the second section we have data members, which we call the attributes like customer name and balance, and the last one we have data members, which we also call the operations or functions. Like we have three functions in it: the add function, withdraw function, and the transfer function. So here is a abstract representation of the class, how it look like, you can see in this diagram as well. So the next one is the what is the association. तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एसोसिएशन क्या है. So class diagram, you can say that displays a relationship such as containment, inheritance, associations, and there are other relationships as well. So first let's discuss what is the association. You can see that there are two classes, customer and order. So you can see that there is a association type relationship. For customer, one customer can take place many orders, because you can say that for a customer side there is under the arrow there is written 1, and on the order side there is written n. 1 for represents 1 and n for many. So it shows the how one customer can place many orders. So customer is a type of class and order is also a type of class, which has, you can see that the class name, the data members or the data methods, and on the last is the operations or data methods. So it simply shows the relationship. So it simply shows the association and the relationship between customer and order, how the one customer can place multiple or many orders.
So another common relationship is also is a generalization. You can see in the bottom part. Basically, generalization provide us a way when two classes are similar but have some differences. Look at this example. Let's say we have two type of customers: corporate customer and personal customer. These are the uh, showing the concept of generalization. So you can see that what is actually being doing generalization, combining similar classes of objects interest or single a more general class, and this is customer. So from the corporate customer and the personal customer, we combining these two classes into a single one which we call a more general class named as customer. सो हमने इस जनरलाइजेशन कंसेप्ट में क्या किया कि कॉर्पोरेट कस्टमर और पर्सनल कस्टमर, हमारे पास दो टाइप्स हैं कस्टमर की, इनको हमने जनरलाइज करके एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू में लिख दिया कस्टमर की क्लास के साथ टॉप पे। जो अब ये कस्टमर है ये जनरलाइज कर रहा है अपनी सब क्लासेस को, कॉर्पोरेट कस्टमर को और पर्सनल कस्टमर को. So it's a concept of generalization. So here we see two types of relationship. First one was the association and the second is generalization. So when to use this diagram or when we should not use this, let's discuss. कि क्लास डायग्राम हमें कब यूज़ करनी चाहिए. क्लास डायग्राम ऑलमोस्ट सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर के डिज़ाइंस में यूटिलाइज़ की जाती हैं. तो ये हम यूज़ करते हैं जब हम डिफरेंट सिस्टम की क्लासेस को और उनके एक दूसरे से रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करना हो तो हम क्लास डायग्राम को यूज़ करते हैं. तो इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, हमने डिफरेंट अभी एस्पेक्ट्स देखे क्लास डायग्राम को ड्रॉ करने के. तो क्लास डायग्राम को ड्रॉ करना मोस्ट डिफ़िकल्ट है टू ड्रॉ बिकॉज द थिंग इज़ it require for a person to it would must have a study UML एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. कि इसके लिए आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए क्लियर एज यू स्टडीड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एज वेल. सो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट का आइडिया है. जो ये क्लास डायग्राम है इसको ये मोस्टली डिफ़िकल्ट डायग्राम है टू ड्रॉ बिकॉज इट रिक्वायर्स फॉर अ पर्सन कि उसके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की स्किल्स हों, कंप्लीट नॉलेज हो, यूएमएल हो. तो इसलिए इसको ड्रॉ करना रिक्वायर अ लिटिल बिट डिटेल अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट एंड द यूएमएल एज वेल. So here we just give a overview of this process, what actually the class diagrams and how this can be uh, can be built from the scratch. So here we have different notations for relationship on class diagram. So अब हम क्लास डायग्राम की मोर डिटेल्स में फॉलो थ्रू करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ नोटेशंस वी हैव फॉर रिलेशनशिप्स ऑन क्लास डायग्राम. कि हमारे पास कौन कौन सी नोटेशंस है रिलेशनशिप के लिए क्लास डायग्राम के अंदर. सो देर आर डिफरेंट थिंग्स व्हाट वी आर स्टडिंग ओवर हेयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज एसोसिएशन. You can see on the top right left side association we have a class A, class B and class C. So first of all you need to understand the concept of association. So students, what is association? Basically जो association है ये हमारे पास रेफ़र करती है या एसोसिएशन होता रिलेशनशिप बताती है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान. एसोसिएशन हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, जैसे हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं जो हमें इनके दरमियान रिलेशनशिप बताती हैं, इट वी कॉल एसोसिएशन. या इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इट रेफर्स टू हाउ ऑब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. कि ऑब्जेक्ट्स आपस में रिलेटेड कैसे हैं एंड हाउ दे आर यूजिंग ईच अदर्स फंक्शनैलिटी, और ये एक दूसरे की फंक्शनैलिटी को कैसे यूज़ कर रहे हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड इन एसोसिएशन. सो association is further divided into two categories. First one is composition and the second one is aggregation. On the top right bottom side of this slide you can see that the composition hierarchy. So composition is one type of association. So what is a composition? Composition हमारे पास क्या है? So composition is strong type of association. You can see the filled diamond in this diagram. Relationship symbol is filled with black color. You can see that यहाँ पे जो डायमंड का सिंबल है इसको ब्लैक कलर से फिल किया गया है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कंपोजिशन है इज़ अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एसोसिएशन. ये एसोसिएशन की एक स्ट्रॉन्ग टाइप है. सो एन
एसोसिएशन इज सेट टू कंपोजिशन। एसोसिएशन को हम कब कहेंगे? एसोसिएशन की दो टाइप्स हो सकती हैं, या वो कंपोजिशन हो सकती है या वो एग्रीगेशन हो सकती है। एसोसिएशन को कंपोजिशन कब कहा जाएगा? एसोसिएशन को कंपोजिशन तब कहा जाएगा इफ़ एन ऑब्जेक्ट owns another object एंड एन अदर ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द ओनर्स ऑब्जेक्ट। कि जब एक ऑब्जेक्ट टोटली दूसरे ऑब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहा हो, और जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस के बगैर एग्जिस्ट ना कर सके, तो पेरेंट चाइल्ड टोटली डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड कंपोजिशन, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग type of association. So let's consider an example of a human having considering the example of a human. So we can say that human having a heart. Here human object contains the heart, and heart cannot exist without human. So here you can see that human and heart, human is the super class and heart is the base class. Heart cannot exist without the human. So heart is totally dependent on human. The heart object cannot be exist without human. So यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हार्ट है डिपेंड कर रहा है ह्यूमन के ऊपर। जब एक ऑब्जेक्ट टोटली डिपेंड कर रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब चाइल्ड टोटली डिपेंड की एग्जिस्टेंस टोटली डिपेंडेंट हो पेरेंट क्लास के ऊपर, तो इस टाइप की एसोसिएशन को कहते हैं कंपोजिशन, और इसको स्ट्रॉन्ग कंपोज एसोसिएशन भी बोलते हैं। एंड यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि इसको इस टाइप की रिलेशनशिप को फील्ड डायमंड के साथ डिनोट किया गया है। एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एग्रीगेशन। नाउ व्हाट इज द एग्रीगेशन हायरार्की? सो एग्रीगेशन इज आल्सो कॉल्ड अ वीक टाइप ऑफ एसोसिएशन। एग्रीगेशन इज ऑपोजिट टू कंपोजिशन। किसी भी एसोसिएशन को एग्रीगेशन कब कहेंगे? जब दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हों। सो व्हाट डज इट मीन? व्हेन वन ऑब्जेक्ट और अ चाइल्ड ऑब्जेक्ट is not depending on the parent object, both are independent of each other. So this type of association is called aggregation, and aggregation is a type of weak association. For example, we let's see the example of a team. Like for example, a team object and a player object. We have two objects, team and a player. The team contains multiple players. एक टीम में multiple players हो सकते हैं, but a player cannot exist without a team. But a player can exist with a team without a team. जो एक प्लेयर है वो एक टीम के बगैर भी तो एग्जिस्ट कर सकता है. So the concept is, in aggregation is a type of weak association, and an association is said to be aggregation if both objects can exist independently. जब दोनों ऑब्जेक्ट्स हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हों तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एसोसिएशन. लेट से मैंने कहा कि हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक टीम का ऑब्जेक्ट है और एक प्लेयर का ऑब्जेक्ट है. जो एक टीम है उसके अंदर मल्टीपल प्लेयर्स हो सकते हैं, लेकिन जो एक प्लेयर है वो एक टीम के बगैर भी खेल सकता है, वो एक टीम के बगैर भी एग्जिस्ट कर सकता है. सो इट्स अनदर एग्जांपल ऑफ एग्रीगेशन. नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट इज जनरलाइजेशन एंड specialization. On the most left bottom part of this slide you can see the generalization and specialization. तो जनरलाइजेशन हमारे पास क्या है? जनरलाइजेशन हमारे पास एक टॉप बॉटम अप अप्रोच है in which we combine a similar class of objects into a single class, or you can see the more general class. जनरलाइजेशन क्या है? जो हम कंबाइन करते हैं सिमिलर क्लास के ऑब्जेक्ट्स को सिंगल क्लास में इन अ मोर जनरल क्लास. जैसे हमने लास्ट में वो वैन एंड लैमोजिन की एग्जांपल देखी थी कि इस अ टाइप ऑफ कार. सो इट्स अ एग्जांपल ऑफ जनरलाइजेशन. एंड जो जनरलाइजेशन है ये इसका जो रिवर्स प्रोसेस है इसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन. जो जनरलाइजेशन है ये बॉटम अप अप्रोच है, वाइल स्पेशलाइजेशन इज़ top down approach. So specialization means creating new subclasses from existing class. Let's see the example of specialization. For example, I say that a bank account is two types, like saving account and credit card account. I am saying bank account is of two types, like saving account and credit account. Saving account and credit card account inherit the common generalized properties like account number, account balance, etc. from a bank account, and also have the specialized properties like unsettled payment, etc. and so on.
तो कहने का मकसद मैंने आपसे ये कहा कि आपके पास एक बैंक अकाउंट है, उसकी दो टाइप्स हो सकती हैं, सेविंग अकाउंट भी हो सकता है और क्रेडिट कार्ड अकाउंट भी हो सकता है। जो सेविंग अकाउंट है एंड क्रेडिट कार्ड अकाउंट है, ये इनहेरिट करती हैं कॉमन या जनरल प्रॉपर्टीज़ को, लाइक अकाउंट नंबर, अकाउंट बैलेंस एटसेट्रा फ्रॉम अ बैंक अकाउंट. So it has also their specialized properties like unsettled payments and etc. So we can conclude here that generalization is a bottom up approach and specialization is a top down approach. Specialization and generalization both are reciprocal to each other. In generalization, we combine similar classes of objects into a single more general class, while in the specialization is a reverse process of generalization, which means creating new subclasses from an existing class. So it's a bit difference between the generalization and specialization. And now on the most right side of this slide, on the upper part, you can see the different types of relationship, like one to different cardinality, like one to one relationship, 0 to 1, 1 to 1, many to many. All of you are already studied here. So let's move to, आप सभी लोग ये डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स पढ़ चुके हैं कि वन टू वन रिलेशनशिप क्या है, ज़ीरो टू वन क्या है, क्लास का वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी क्या है. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर वेल अवेयर अबाउट इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो नो व्हाट इज़ द यूज़ केस डायग्राम क्या है. यूज़ केस डायग्राम हम प्रीवियस स्लाइड्स में भी पढ़ चुके हैं. ये क्या है, बेसिकली ये एक कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान, वर्क एज अ कॉन्ट्रैक्ट काम करती है यूज़र के दरमियान और डेवलपर्स के दरमियान. जो एक्टर है ऑन द मोस्ट लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं, इसको एक ह्यूमन की शेप में दिखाया गया है और यूज़ केस को एक ओवल की शक्ल में रिप्रेजेंट किया गया है. यूज़ केस क्या करता है, किसी भी सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ को डिस्क्राइब करता है. सो लेट्स move to the practical example of use case. In this diagram you can see the most left part. ये हमारे पास एक एग्जांपल है लाइब्रेरी सिस्टम की. सो here is a box here which we call a boundary, and in this inside we have a different use cases like borrow, order title and the fine remittance. And on the most right side we see the secondary actor, and on the most left side we see the primary actor. Here our primary actor is client and secondary actor is employee and supervisor. Both primary and secondary actor interacts with the system to achieve some common goal or task. हमारे पास ये यूज़ केस की एग्जांपल है. क्लाइंट हमारे पास प्राइमरी एक्टर है जो इंटरेक्ट कर रहा है कि बुक को बोरो कैसे कर सकते हैं, जो फाइन किया गया है सुपरवाइज़र की तरफ से उसका कैसे पे ऑफ कर सकते हैं. इसी तरह से एम्प्लॉय क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकता है, सुपरवाइजर्स क्या कर सकता है. अभी आपको जस्ट ये देखना है कि हाउ द, इस डायग्राम में यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द यूज़ केस एक्चुअली लुक लाइक्स, कि यूज़ केस दिखता कैसे है. इसकी एक बाउंड्री होती है, यू कैन सी डैट. इस बाउंड्री के इनसेट जो ओवल्स में है ये हमारे पास फंक्शनैलिटीज़ हैं किसी भी सिस्टम की. और जो इस यू बाउंड्री के राइट साइड पे आपको एम्प्लॉय एंड सुपरवाइजर नज़र आ रहे हैं, इनको सेकेंडरी एक्टर बोलते हैं. और जो लेफ़्ट साइड पे बाउंड्री के नज़र आ रहे हैं जैसे क्लाइंट है, इनको प्राइमरी एक्टर बोलते हैं. सो ये प्राइमरी एक्टर और सेकेंडरी एक्टर इनसाइड द बाउंड्री डिफरेंट यूज़ केसेस के साथ इंटरेक्शन करके सिस्टम के डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म कर रही हैं टू अचीव सम कॉमन गोल. सो हेयर इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ यूज़ केस डायग्राम. लेट्स हम का एक और एग्जांपल है यूज़ केस डायग्राम की. लेट्स वी से अ यूज़र कैन ब्राउज अ कैटलॉग एंड सेलेक्ट डिफरेंट आइटम्स. आफ्टर सेलेक्टिंग द आइटम्स कस्टमर कैन आल्सो कॉल द सेल पर्सन्स. After call a salesperson, he can order for different shipping, and then for the shipping purpose here he has to pay for his order in payment info. And the last one is how the confirmation number from the sale person after the order being placed. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये 5 डिफरेंट फंक्शंस हैं जो एक ई कॉमर्स साइट के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं. कि ये डिफरेंट हमारे पास 5 फंक्शंस गिवन है. इन 5 फंक्शंस को हम यूज़ केस में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो you can see the another example of here use case diagram. सो द हमें यूज़ केस डायग्राम को कब यूटिलाइज़ करना है. यूज़ केस डायग्राम ऑलमोस्ट एवरी प्रोजेक्ट में यूज़ किए जाते हैं. ये मोस्टली हेल्पफुल होते हैं रिक्वायरमेंट्स को और रिक्वायरमेंट्स में और प्रोजेक्ट की प्लानिंग में. तो जो हमारी इनिशियल स्टेज होती है किसी भी प्रोडक्ट की, तो इसी के अंदर यूज़ केसेस को डिफाइन किया जाता है. तो ये हमें एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव बताते हैं सिस्टम का, एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ डेवलपर्स
as well as the customer. So how we can draw this use case is very easy to draw. uh, Very simplified example you also see in the previous two slides as well. So like you just start by listing a sequence of steps a user might take in order to complete an action. Like you have a series of actions to perform, you just follow this listing a sequence of steps a user कैन टेक इन ऑर्डर टू कंप्लीट एन एक्शन. जैसे हमने प्रीवियस अपनी स्लाइड में देखा कि एक यूज़र को अपना ऑर्डर प्लेस करना था, तो सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करने के लिए उसने सीरीज ऑफ स्टेप्स एक्शंस परफॉर्म किए. लाइक द फर्स्ट वन वाज दी हाउ इट कैन ब्राउज अ कैटलॉग एंड सेलेक्ट आइटम, एंड आफ्टर इट कॉल द सेल रिप्रेजेंटेटिव, एंड आफ्टर इट गिव द शिपिंग इन्फॉर्मेशन वेयर द ऑर्डर विल बी प्लेस्ड. आफ्टर इट ही give the payment, and of the final one was he or she received the confirmation number from the salesperson that your order is being placed. So here are the different actions which will be carried out to achieve some common goal. So the common goal was to place an order. So the next one is object diagram. So now what are the object diagrams? So object diagrams हमारे पास क्या हैं, ये किसी भी क्लास के डायग्राम के इंस्टेंस को डिस्क्राइब करती हैं. तो ये जो डायग्राम्स हैं मोर क्लोज हैं रियल लाइफ के सिनारियोज़ के. ये जहाँ पर हम सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं इनको वहाँ पर यूटिलाइज़ किया जाता है. तो ऑब्जेक्ट डायग्राम्स आर द बेसिक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और जो उनका रिलेशनशिप है बिल्कुल क्लास डायग्राम की तरह ही है, एंड इट गिव्स अस द स्टैटिक व्यू ऑफ द सिस्टम. तो जो यूजेज है ऑब्जेक्ट डायग्राम्स का बिल्कुल क्लास डायग्राम की तरह ही है, बट इसमें प्रोटोटाइप हम सिस्टम की डिफाइन की जाती है फॉर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव. प्रोटोटाइप मीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लाइक जैसे हमने यूज केस डायग्राम बनाया, इट्स आल्सो अ प्रोटोटाइप which we gives to the user to get a better idea about the system how it will looks like. And the next one is component diagram. So component diagram भी set of components होते हैं और इनका relationships को represent करते हैं हम इसके अंदर. तो component can be जो एक component के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, classes, interfaces and its collaboration. So component diagram जो है हमारे पास implementation view देती है हमें अपने system का. तो ड्यूरिंग डिज़ाइन फेज हमारे पास सॉफ्टवेयर के डिफरेंट स्पीसीज ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें क्लासेस इंटरफेसेस हैं. इनको डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप. तो फिर इन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं, तो नो इन ग्रुप्स को फिर हम कहते हैं कंपोनेंट्स. फाइनली जो कंपोनेंट डायग्राम है उसको हम यूज़ करते हैं टू विजुअलाइज द इम्प्लीमेंटेशन. एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डिप्लॉयमेंट डायग्राम. इन द डिप्लॉयमेंट डायग्राम हमारे पास सेट ऑफ नोड्स होते हैं और उनका रिलेशनशिप होता है. तो ये जो हमारे पास नोड्स हैं फिज़िकल एंटिटीज़ होती हैं. तो ये जो हमारे पास नोड्स हैं बेसिकली ये फिज़िकल एंटिटीज़ होती हैं जहाँ पर हम इन कंपोनेंट्स को डिप्लॉय करते हैं. सो यू सी दैट डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स जो हैं यूज़ करते हैं विजुअलाइजिंग द डिप्लॉयमेंट व्यू ऑफ सिस्टम. तो ये जो यूज किया जाता है ये डिप्लॉयमेंट टीम की तरफ से ही किया जाता है. सो देयर इज़ अ नोट फॉर स्टूडेंट्स कि यू ऑब्ज़र्व, आपने ये केयरफुल अगर इसको ऑब्ज़र्व करेंगे बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि ऑल डायग्राम्स है आर हैविंग सम रिलेशनशिप्स विद वन अनदर. हर डायग्राम का एक दूसरी डायग्राम से कोई ना कोई रिलेशनशिप है. फॉर एग्जांपल जो कंपोनेंट डायग्राम है आर डिपेंडेंट अपॉन द क्लासेस इंटरफेसेस एटसेट्रा like which are part of classes object diagrams. So again you also see that जो deployment diagram is dependent upon the components जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी कंपोनेंट्स को बनाने के लिए. सो हेयर द पर्पस इज़ डिफरेंट डायग्राम्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो द नेक्स्ट वन इज सीक्वेंस डायग्राम. सो व्हाट इज़ द सीक्वेंस डायग्राम्स. आगे हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम्स हैं ये बेसिकली हमें इंटरेक्शन बता रही होती हैं किसी भी डायग्राम का, कि जिस तरह कि इसके नेम से ही क्लियर है कि ये कुछ सीक्वेंस हमें बता रहा होता है कि किस सीक्वेंस के बाद कौन सा मैसेज फ्लो कर रहा है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट. सो इंटरेक्शन और डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान जो हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जीक्यूशन पर्सपेक्टिव में. सो जो सीक्वेंस डायग्राम है ये हमें सीक्वेंस ऑफ बता रहा होता है कि कैसे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म हो रही हैं. So let's see the example of sequence diagram. In this example, you can see that we have three objects or entities like user, ATM, and bank. So let's see how messages will be passed between these objects. This vertical and below is also called a lifeline. ये जो बिलो से वर्टिकल फील्ड लाइन आपको नज़र आ रही है या यूज़र में, एटीएम में और बैंक में, ये एक लाइफ लाइन इसको बोलते हैं जिस टाइम के दौरान डिफरेंट
जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। लाइक फ्रॉम द यूज़र, जब आप एटीएम में जाते हैं, यू एंटर योर कार्ड, आफ्टर एंटरिंग द कार्ड एटीएम सिस्टम रिक्वेस्ट फॉर द पिन, आफ्टर यू एंटर द पिन टू द एटीएम इट बीइंग प्रोसेसिंग, एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग ATM verify your pin from the bank. You can see that after the validation, user get a different options like withdraw money, like fast cash, like balance checking. So user withdraw money and request for amount. So here you can see that कि एक यूज़र कैसे एटीएम में जाता है, अपना कार्ड इंसर्ट करता है और एटीएम का जो ऑब्जेक्ट है वो पिन के लिए रिक्वेस्ट बैक करता है यूज़र को। देन यूज़र एंटर पिन करता है एटीएम में, और वहाँ से करने के बाद जो एटीएम है इटसेल्फ वो वेरीफाई करती है बैंक के सर्वर से कि आइदर पासवर्ड इज़ राइट और रॉन्ग। आफ्टर वैलिडेटिंग द पासवर्ड, it gives the option to ATM, gives the option to user, then user can withdraw money, different options can be utilized. So here is a sequence diagram which shows that how different objects, how the message is being passed between the different objects like user, ATM and banks. So next one is collaboration diagram. So collaboration diagram क्या है? So basically जो collaboration diagram है ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान उनका जो ऑर्डर ऑफ मैसेज पास हो रहा है, उनका रिलेशनशिप हमें बताता है। और इन ऑब्जेक्ट्स को रेक्टेंगल से शो ऑफ करते हैं, और ये जो एरोज़ हैं ये इंडिकेट करते हैं कि व्हाट मैसेज बीइंग, कौन सा मैसेज पास हो रहा है। एंड दीज नंबर्स नेक्स्ट टू मैसेज जो नंबर लिखे हुए हैं आर कॉल्ड सीक्वेंस नंबर्स। हर मैसेज के आगे एक नंबर लिखा गया है उसको सीक्वेंस नंबर बोलते हैं। जैसे आप मैसेज को देखें, उसके स्टार्ट पे नंबर है, उसके बाद जो नंबर मैसेज किया आ रहा है it's called a sequence number. So we can conclude that this collaboration diagram convey the same information as sequence diagram, but the main difference between sequence diagram and collaboration diagram is that it focus on the object role instead of the time sequence. कि जो हमारे पास collaboration diagram है ये object के role के ऊपर focus कर रही है, जबकि जो हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम था it more focus on the time sequence. So here is a diagram, you can see that the object 1 pass its message 1 to the object 2, and object pass to the n, and so on. This diagram is self-explanatory how different objects shows a relationship and how the order of messages is passing between different objects. So here is the collaboration diagram. एंड द नेक्स्ट वन इज स्टेट डायग्राम. हमारे पास स्टेट डायग्राम क्या है? स्टेट डायग्राम हम यूज़ करते हैं सिस्टम के बिहेवियर को शो करने के लिए, जिसके अंदर तमाम पॉसिबल स्टेट्स को बताते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जो किसी इवेंट के ओकर होने पे हो सकती हैं। तो जो हर स्टेट डायग्राम है वो रिप्रेजेंट करती है ऑब्जेक्ट को किसी सिंगल क्लास के, और इसके अंदर हम ट्रैक करते हैं डिफरेंट स्टेट्स को सब्जेक्ट्स की किसी भी सिस्टम के अंदर। सो इन स्टेट डायग्राम्स को यूजुअली हम यूटिलाइज़ कब करते हैं? जब हमने अपने सिस्टम के बिहेवियर को डेमोन्स्ट्रेट करना हो थ्रू मैनी यूज़ केसेस ऑफ द सिस्टम। हम स्टेट डायग्राम्स को क्लासेस के लिए वहीं पे यूज़ करेंगे जहाँ पर हमारे लिए किसी एक ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना थ्रू द एंटायर सिस्टम कंपलसरी हो। हेयर यू कैन नोट दैट all classes will require a state diagram, and state diagrams are not useful for describing the collaboration of all objects in a use case. So here you can see that how state diagrams we can use. Now the next one is how we can draw state diagram को हम draw कैसे कर सकते हैं. So here is the graphical representation. The upper module it is being represented by the rounded rectangle, or you can say the rounded box. Here you can see that the state of the object and arrows including the transition to the next state. इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जब मूव करते हैं तो ट्रांजिशन एक्टिविटीज़ इस एरो के ऊपर लिखी जाती है। और जितनी भी स्टेट डायग्राम्स हैं ये एक इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होती है, और वो जो स्टेट होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की जब दिस इज़ बेसिकली द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ क्रिएटेड। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तो इनिशियल उसकी जो उसकी स्टेज होती है सबसे पहले क्या होती है? इनिशियल। आफ्टर द इनिशियल स्टेट द ऑब्जेक्ट्स बीइंग चेंजिंग स्टेट्स। जब इनिशियल स्टेट क्रिएट हम कर लेते हैं उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है क्योंकि एक एनवायरनमेंट में सिस्टम में चला गया है तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई से इवेंट्स रिसीव हो रहे हैं तो वो अपनी पोजीशन को, अपने इवेंट्स को, अपनी पोजीशंस को जो है वो स्टेट्स को चेंज करता रहता है। तो जो कंडीशंस जो है हमारी बेस करती हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो
कि नेक्स्ट स्टेट क्या है, ट्रांजिशंस क्या हैं. सो इट्स ऑल अबाउट द स्टेट डायग्राम्स. सो हेयर इज़ अनदर व्यू ऑफ स्टेट डायग्राम लाइक एज आई, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि स्टेट डायग्राम के अंदर सबसे पहले इनिशियल स्टेट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की. फिर उस इनिशियल स्टेट के क्रिएट होने के बाद जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपनी स्टेट्स को चेंज करना स्टार्ट करते हैं. जब वो इनपुट या एक्सटर्नल इवेंट इन द शेप ऑफ डिफरेंट ट्रांजिशंस की रिसीव करते हैं तो वो अपनी स्टेट्स को ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट चेंज करते रहते हैं. सो स्टूडेंट्स, till here we see the different perspectives, different building blocks of UML, in which we see the things, relationships and diagrams. In things we see the four different types: structural, behavioral, grouping and annotational. And after it we see the what kind of relationships, and then we see the discuss the different types of diagrams. तो अब तक हमने different diagrams भी देखी. Now we will move towards the practical or a real world case study of to understand the how we can build a UML based modeling from a real world case study or a scenario. So till here it's the end of lecture number 5.